Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of September 2020 Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is success is how high you bounce when you hit bottom. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RBI battle ready to meet economy's need, Mr. Das. Yesterday, one event was organized by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is in short called as FICCI. And in that event, number of top officials of commercial banks as well as the governor of RBI, that is Mr. Shakti Kanta Das, was invited to speak upon the economic recovery and the economic conditions of India. And on that event, Mr. Das has clearly emphasized that in Indian case, the economic recovery is going to be slow as it was not expected by expert or the strategists, but this has been now realized in case of India that economic recovery is going to be slow, but the central bank, that is RBI, is fully prepared and is better ready to whatever measures they can take in order to prop up the growth. तो कल आरबीआई के गवर्नर मिस्टर दास ने फिक्की के इवेंट में बहुत क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्पीड पेस से ग्रो नहीं करेगी. द रिकवरी इज गोइंग टू बी स्लो एज इट वाज एक्सपेक्टेड बाय ऑल credit rating agencies and other international organization. एज पर मिस्टर दास, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाए हैं एंड जून एंड जुलाई विल अपीयर टू बी लेवलिंग ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स. और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है वैसे वैसे कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ रहा है. तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए RBI is fully prepared to fight the battle of economic recovery as per Mr. Das. These are the certain key points that has been emphasized during that event, that economic recovery is going to be gradual, and with the opening of economy, reopening of the economy, the infection rate is rising. So how government and RBI is going to cope up, that's still a big question. On the increasing NPA of the banks and NBFCs, Mr. Das clearly said that they do not want to repeat the situation that India has already experienced before 4 to 5 years ago in case of NPA surge. So all the possible measures will be taken by the central bank in order to maintain the NPA as well as the NBFCs. क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि जितने भी NBFCs हैं वो भी कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं. तो उनके लिए भी कंसर्न शो करते हुए मिस्टर दास ने कहा दैट RBI इज़ फुली प्रिपेयर इन ऑर्डर टू फाइट आउट ऑल दीज प्रॉब्लम दैट इकोनॉमी इज एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. OECD raises prospects for global GDP, cuts it for India. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने प्रोजेक्शन में ग्लोबल इकोनॉमी में या ग्लोबल जीडीपी में इंक्रीज एंटिसिपेट किया है, इंक्रीज फोरकास्ट किया है, एक्सेप्ट India's economy. As per the OECD, India's economy is going to shrink 10.2% into the current financial year, that is financial year 21, against its earlier estimate or earlier forecast that was 3.7 to 7.3%. तो OECD का जो पहले का फोरकास्ट था, उस फोरकास्ट में OECD ने इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ही फोरसी किया था, बट दैट कॉन्ट्रैक्शन वाज less in comparison to the revised estimate. Previous estimate was about 3.7 to 7.3% contraction, but in its revised estimate or revised forecast, OECD has anticipated that India's economy is going to shrink by 10.2% into this financial year. Although अगर ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो OECD का जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है. अपने प्रीवियस प्रोजेक्शन में, प्रीवियस फोरकास्ट में OECD ने 6% का कॉन्ट्रैक्शन फोरसी किया था, एंटिसिपेट किया था फॉर ग्लोबल जीडीपी, बट दैट प्रोजेक्शन हैज़ नाउ बीन रिवाइज्ड एंड इंक्रीज टू 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2020. तो ग्लोबल जीडीपी को लेकर के OECD का जो projection that is little bit positive in comparison to India's economic growth.
और जिन फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, लेटेस्ट जो इकोनॉमिक आउटलुक आया है OECD का, उसमें OECD ने कहा है बेसिकली जो वायरस है वो इंडिया में बहुत लॉन्ग टाइम से डिस्पर्स कर रहा है, फैल रहा है, तो प्रोलॉन्ग स्प्रेड होता जा रहा है वायरस का। इंडिया में पावर्टी बहुत ज़्यादा है, वायरस को लेकर के इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट के साइड से जो कन्फाइनमेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक लॉकडाउन किए जा रहे हैं, दैट आर टू वे स्ट्रिक्टर दैन द ग्लोबल मेजर्स। तो इन सारे मेजर्स की वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, हाई लेवल ऑफ पावर्टी, प्रोलॉन्ग स्प्रेड ऑफ वायरस, इनफॉर्मेलिटी, ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियन GDP. OECD has further explained that high public debt, contingent liability, and the low tax base constrain the use of fiscal policy to support the growth and income of marginalized section of the इंडिया। जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही ऐसे सेगमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 से, एज पर द OECD। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या इंडिया में हमेशा से हाई पब्लिक डेट रहा है। गवर्नमेंट पब्लिक डेट से बहुत सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या पॉलिसी या प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक डेट पे जाते हैं। तो हाई पब्लिक डेट, नंबर ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, टैक्स बेस आर वेरी लो। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट के जो पास जो ऑप्शंस हैं टू रिवाइव द ग्रोथ एंड इनकम ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, वो बहुत कम ऑप्शंस रह गए। और इन्हीं सारे फाइनेंशियल सिस्टम और लूप होल्स की वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं गवर्नमेंट के पास बचते हैं टू रिवाइव द इकोनॉमी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी द वर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन टू द इंडियन हिस्ट्री। जैसे बोलते हैं 10.2% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एज पर OECD। और ऐसा रिवीजन सिर्फ OECD ने नहीं किया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जितनी भी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने भी अपने रिवाइज्ड एस्टिमेशन में इंडिया के जो GDP की जो फोरकास्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ किया है। और ऐसा रिवीजन कब हुआ? बेसिकली जब इंडिया के खुद के Q1 के रिजल्ट आए, उस खुद के Q1 के रिजल्ट्स को देखते हुए इंडिया जो Q1 के रिजल्ट पब्लिश किए थे उसके अकॉर्डिंग गोल्डमैन सैक्स, इंडिया रेटिंग, SBI रिसर्च, नोमुरा, फेच, OECD, इकरा, क्रिसिल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब ने अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी के प्रोजेक्शंस में कोई भी सिंगल ऐसा प्रोजेक्शन नहीं जिसमें रिवीजन ना हुआ और जिसमें इंक्रीज प्रोजेक्ट ना किया हुआ कॉन्ट्रैक्शन में। तो मैक्सिमम अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी इंडिया की इकोनॉमी में आगे आने वाले टाइम में प्रोजेक्शन जो दिए हैं उनके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होने वाला है। एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स आर indicating that economy is going to recover with a very slow pace, as it was also expected by or accepted by RBI Governor Mr. Das into the previous news. We have already discussed this. तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ OECD? OECD एक्चुअली है क्या? तो OECD ये जो हमारे इकरा हो गए या हमारी क्रिसिल, इनकी तरह कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है। बेसिकली OECD इज एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 36 कंट्री एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1961। बेसिकली द पर्पस ऑफ OECD वाज टू स्टिमुलेट द वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अगर हम देखें 36 कंट्रीज हैं, दे आर वेरी हाई ऑन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसको बोल सकते हैं कि हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं 36 कंट्री। ये आपस में साथ आकर के इन्होंने बेसिकली जो एम स्टैब्लिश किया दैट टू स्टिमुलेट द वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जितने भी हाई डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंट्रीज़ हैं, बेसिकली आप इनको बहुत सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं रिच जो इकोनॉमीज़ हैं, उन्होंने OECD फॉर्म किया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फ्री मार्केट। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, पार्ट की बात करें, तो OECD मेंबर्स स्टेट जो हैं, कंट्रीज हैं, दे आर कलेक्टिवली कंप्राइजेस 62.2% of global nominal GDP and 42.8% of global GDP at purchasing power parity in
ईयर 2017। तो आप सोच सकते हैं कि 42.8% वर्ल्ड की जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं OECD के मेंबर कंट्री। तो ये इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। आप देख सकते हैं 42% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सारे मिल करके ग्लोबल जीडीपी का। इट मीन्स वट एवर डिसीजन दे हैव टेक, वट एवर प्रोग्राम दे इम्प्लीमेंट, इट हैज़ अ वेरी significant impact on global economy as well. And the objective of OECD was to include fostering economic development, cooperation and fighting poverty through promotions of economic stability. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनका पर्पस फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल पर्पस में ये ट्रेड को और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनपीए अंडर मुद्रा राइज टू 5%। हम सभी ये कई टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, उन सब का एनपीए बढ़ रहा है और स्पेशली कोविड-19 की ड्यूरेशन में वो एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज, द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स फॉर लोन डिसबर्स्ड बाय स्टेट ओन्ड बैंक स्पेशली अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दैट इज PMMY इज ऑन अपवर्ड ट्राजेक्ट्री। तो जितना भी बैड लोन हुआ है उस सारे बैड लोन में, या जिससे बोल सकते हैं जो हमारे स्टेट ओन्ड बैंक्स में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का रेशियो है उसमें मुद्रा लोन का एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो डेटा रिलीज रखा है, जो डेटा शो किया, रिप्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग जितना भी लोन डिसबर्स हुआ है अंडर दिस मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उस सारे लोन का 5% लोन जो है वो एनपीए के में कन्वर्ट हो चुका है। एंड व्हाट इज एनपीए? एनपीए इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑफ बैंक, और ऐसे लोन जिस पर 90 दिन तक, 90 डेज तक कोई भी इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया गया है। और मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेसिकली दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू द ईयर 2015। 2015 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और बेसिकली इस स्कीम का एक ही पर्पस था, जो हमारा स्मॉल स्केल एमएसएमईज हैं, जो हमारा स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको ग्रो करना, स्टार्टअप्स को ग्रो करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको कुशन प्रोवाइड करना बाय प्रोवाइडिंग द अनसिक्योर्ड लोन अप टू 10 लाख। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने एक और स्कीम निकाली थी जिसमें कि लोन के लिए कोलेटरल नहीं देना होगा स्मॉल इंटरप्राइजेस को। कुछ पर्टिकुलर लोन का अमाउंट फिक्स किया था, इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दैट न्यूज़ ऑल्सो। तो उसमें कोलेटरल की ज़रूरत नहीं थी या ऐसी कोई सिक्योरिटी रखने की, सिक्योरिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। बैंक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अनसिक्योर्ड फॉर्म में लोन मिल जाएगा। तो बेसिकली होता है क्या, जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस हैं, दे डू नॉट हैव एनी कोलेटरल, उनके पास कोई ऐसा असेट नहीं होता जिसको वो गिरवी रख करके, जिसको हम बोल सकते हैं, वो लोन ले। बेसिकली जब भी बैंक आपको लोन देता है तो वो सिक्योरिटी के फॉर्म में, कोलेटरल के फॉर्म में कोई आपका असेट रखता है कि आप उस, अगर वो लोन ना पे कर पाए, जो बोरोवर है वो लोन ना रीपे कर पाए, तो उस सिक्योरिटी से उस लोन की रिकवरी करी जा सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम लॉन्च करी थी इसलिए कि ऐसे स्मॉल इंटरप्राइजेस जिनके पास कोलेटरल रखने के लिए कुछ नहीं है, बट दे एक्चुअली रिक्वायर लोन इन ऑर्डर टू रन देयर बिजनेस, उनका बिजनेस वायबल है और उस वायबल बिजनेस को रन करने के लिए या स्टार्टअप्स को इनिशिएट करने के लिए उनको फंड की ज़रूरत है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द असेट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कोलेटरल, दे आर नॉट एबल टू गेट द लोन। तो गवर्नमेंट ने ये मुद्रा स्कीम चलाई थी, जिस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को दिया गया। तो अब इस कोविड-19 की सिचुएशन में ये देखा गया कि जितना भी लोन मुद्रा स्कीम के अंदर डिसबर्स किया था स्टेट ओन्ड बैंक्स ने, उसका 5% बैड लोन में कन्वर्ट हो चुका है, एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिंस इट्स इंसेप्शन, मीन्स सिंस 2015, over 253 million loans amounting to 12.9 trillion have been disbursed under the Mudra scheme, and that is a very huge amount. तो अब बैंक के, आरबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इंक्रीजिंग एनपीए हर सेक्टर में, एनबीएफसीज के सेक्टर में भी, एमएसएमईज के सेक्टर में भी, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। अगर हम एनपीए का परसेंटेज देखें तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली फाइनेंशियल 2017 से ये इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। जो ये ग्रे लाइन है दैट एक्चुअली इंडिकेट द डिसबर्स लोन एंड द ब्लैक बार इंडिकेट्स द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बेसिकली
जो कि बैड लोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम ये देख सकते हैं 2017 में अच्छा खासा डिसबर्समेंट हुआ था, और ये डिसबर्समेंट लोन का अंडर मुद्रा स्कीम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने के साथ में एनपीए भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। दैट इज अ वेरी worrying situation for government of India whether to continue with this mudra scheme or not। हालांकि इस समय जो तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी स्कीम्स को बंद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई अगर कम हुई तो वैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रही, डिमांड इकोनॉमी में नहीं है, और अगर इस तरह की स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा तो इकोनॉमी में और डिमांड डिक्रीज करेगी। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। तो बहुत ही इस समय कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इकोनॉमी, इंक्रीजिंग एनपीए, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, मनी इन सर्कुलेशन कह सकते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन 24% तक इंक्रीज करके, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपने 100% कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर डिग्रेडिंग द इंडियन इकोनॉमीज प्रोजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बॉन्ड्स जो हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम कंपनीज अपनी डीवैल्यूएशन की स्टेज पर हैं या बहुत मिनिमम वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं। तो दिस इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। उस तरह की सिचुएशन में इस तरह के लोन को अगर गवर्नमेंट मुद्रा लोन सस्पेंड करती है तो जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या लिक्विडिटी क्रंच की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी, जो कि वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के कैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, इट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5। जीरो कार्बन इकोनॉमी पॉसिबल बाई 2050 टू कॉस्ट ओनली 1 to 1.5% of global GDP report। As per the recent report published by Energy Transition Commission (ETC), it has estimated that if global economy wants to be ज़ीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी, दैट वॉज एक्चुअली ये ज़ीरो कार्बन एमिशन बहुत सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका टारगेट है। जो इन्वायरमेंटल पैनल है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका टारगेट है ईयर बाय ईयर का कि ग्लोबल इकोनॉमी में, वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड जनरेट हो रहा है, इकोलॉजी को जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन बेसिकली एक कोलिशन है जिसमें ग्लोबल लीडर फ्रॉम अक्रॉस द एनर्जी लैंडस्केप मीट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या, कहाँ किस किस एरिया में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट कैसे किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ कार्बन एमिशन फ्रॉम world economy। So as per the Energy Transition Commission, the required additional investment for achieving the net zero carbon economy by financial year 2050, while significant in absolute dollar term, will amounting to not more than 1 to 1.5% of global GDP, that is approximately $1 to 2 trillion annually। तो एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन का ये कहना है, टीसी का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए 2050 तक वर्ल्ड इकोनॉमी को कार्बन एमिशन फ्री बनाने के लिए। इट्स अ वेरी माइन्यूट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 1 to 1.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो चल रहा है, लो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसको देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल leadership or the countries to actually start investing into the टेक्नोलॉजी, एनर्जी प्रोडक्ट्स, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, इक्विपमेंट्स, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में 2050 तक ग्लोबल इकोनॉमी ज़ीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी हो जाए। तो as per the ETC, this is a very good time that all the global leaders, major economies should start investing into the green technology। And what is the green technology? ऐसी टेक्नोलॉजी जो बेसिकली कार्बन एमिशन को रिड्यूस करे या मिनिमाइज करे। तो एज पर दिस ETC केवल 1 to 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एनुअली लगना है। इट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, बट द आउटकम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 2050 तक ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल इकोनॉमी या टोटल कार्बन या नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी हो जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन क्या है, और एक और इंडेक्स पब्लिश होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, और किस कंट्री ने टॉप किया है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स।
तो इसको ETI बोलते हैं। और कौन सा गवर्नमेंट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है या बनाता है? तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में लिख करके बताएंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स इन GVA डाउन टू 15% स्टडी। As per the recent researchers conducted, the share of manufacturing in Indian gross value added, that is GVA, declined to 15.1% in the financial year 20। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो रहा है उसमें इंडिया में जो इंडिया का जो GVA है, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हुआ है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी के केस में हम सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर गए हैं। बीच में जो लिंच पिन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो इंडिया के केस में सस्पेंड रहा, वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। तो एज पर दिस डेटा रिलीज्ड और दिस रिसर्च स्टडी कंडक्टेड, फाइनेंशियल ईयर 20 में भी इंडिया का जो GVA रहा है उसमें भी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है। उससे पहले यानी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का इंडिया के GVA में 18.5% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि 2010 से डिक्रीज करते हुए फाइनेंशियल ईयर 20 तक 15.1% तक आ गया। एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली द वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि जब भी 2014 की अगर हम बात करें, जब इंडिया में पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ था, तो उसके बाद गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ था, जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको इनवाइट किया गया था फॉर देयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आए, उनको स्पेशल हॉलीडेज़ दिए जाएंगे फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, उनको बहुत सारे टैक्स के एग्जम्पशंस मिलेंगे। और इन सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बाद, प्रोग्राम्स के बाद भी अगर इंडिया के टोटल GVA में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज कर रहा है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2010, इट इज़ अ वरिंग सिचुएशन for strategists and for economists. This is despite the strong and growing private consumption demand in the country, said the study published by Export and Import Bank of India. इसको शॉर्ट फॉर्म में EXIM बैंक भी बोलते हैं। तो EXIM बैंक की स्टडी है जिसमें कहा गया है कि कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का डिक्रीज कर रहा है, ऑल दो जो प्राइवेट कंजप्शन है मैन्युफैक्चरिंग में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो एक साइड में बोल सकते हैं, ऑन द अदर साइड कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, दूसरा साइड सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट दैट ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग प्राइवेट कंजप्शन डिमांड, द इंडियाज इकोनॉमी इज गोइंग टू बी हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू मीट आउट द ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड ओवर द ईयर्स। अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्राइवेट कंजप्शन डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा या उसको डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो जो हमारे प्राइवेट कंजप्शन कंपनीज हैं, जो दे विल इवेंचुअली लैंड अप इनटू द इम्पोर्ट। जो हमारे प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं, जो बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, उनको फिर इम्पोर्ट के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और कंटिन्यूसली इसी की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का इंपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 8% से डिक्रीज़ किया, और वो 8% से डिक्रीज़ करने की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है डिक्रीज़ होता है, वो इंपोर्ट रिडक्शन की वजह से है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस, एज पर द स्टडी पब्लिश्ड बाय EXIM बैंक ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। टाटा फॉर्च्यूनर फॉर पार्लियामेंट projects. So industrial infrastructure firm Tata Projects Limited is likely to back the government ambitious parliament redevelopment project with the lowest bid. So as per the sources, the bid were opened on Wednesday to find out the close fight between the two, that is Mumbai headquarter firm Tata Projects and L&T. तो L&T और टाटा के बीच में कंपटीशन था, जिसमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा ने जो है लोएस्ट बिड L1
कोट करी है, जिसकी वजह से इस बात के हाई चांसेस हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप को मिल जाता। पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022। तो इंडिया का जो 76 इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले पार्लियामेंट का रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट करना है, जिसके लिए टेंडर फ्लोट किया गया था। बहुत सारी कंपनीज ने टेंडर डाला था, जिसमें बेसिकली 2 बड़ी कंपनीज के बीच में कंपटीशन था, एंड दैट वाज टाटा एंड L&T। एंड मोस्ट प्रोबेबली एज पर द सोर्सेज दिस टेंडर इज गोइंग टू बी इन द हैंड ऑफ टाटा। तो ये मेगा मेकओवर है जो इंडियन पार्लियामेंट में होने जा रहा है सिंस long time. Under this project, new parliament building planned to be completed by March 2022। तो ज्वाइंट सेशन जो है 70th इंडिपेंडेंट डे का, वैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही होस्ट किया जाएगा। और जो नई बिल्डिंग बनेगी वो एक्चुअली ट्रायंगुलर बिल्डिंग होगी, 13 एकड़ के प्लॉट में होगी, जिसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस जो कि अभी नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे MPs और के ऑफिस जो हैं वो नहीं आ पा रहे, वो अब उसमें एकोमोडेट उस टाइम उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1315 की सीटिंग कैपेसिटी होगी, एंड दैट्स अ वेरी एम्बिशियस प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2। वेदांता wins case for $499 million award claim. So Anil Agrawal led Vedanta Group got a relief, and the major relief from Supreme Court of India on Wednesday, where Supreme Court of India has rejected the government plea challenging an attribution award allowing company to recover approximately $500 million instead of $198 million. तो वेदांता ग्रुप को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है फॉर देयर रावा ऑयल एंड गैस फील्ड। बेसिकली जो डिस्प्यूट था, दैट डिस्प्यूट वाज रिलेटेड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो PSC कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेदांता। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बेसिकली डिस्प्यूट अराइज हुआ था, जिसमें जो बेसिक एक कंटेंशियस इशू था दैट वाज द रिकवरेबिलिटी ऑफ द बेस डेवलपमेंट कॉस्ट। BDS जो बेस डेवलपमेंट कॉस्ट है उसकी रिकवरी को लेकर के, जो कि रेवा फील्ड में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर के इशू था बिटवीन गवर्नमेंट एंड वेदांता, एंड फाइनली वेदांता ग्रुप हैज वन द केस। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क, बट इतना थोड़ा सा जान लीजिए कि रेवा ऑयल गैस फील्ड्स को लेकर के गवर्नमेंट और वेदांता के बीच में टसल था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने प्लिया डाली थी फॉर एन आर्बिट्रेशन अवार्ड अलाउइंग द कंपनी टू रिकवर $500 million इंस्टेड ऑफ $200 million। और जो एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ये बहुत पुराना है, तो बहुत टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वर्डिक्ट दिया। ये 1993 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और उसमें रिकवरेबिलिटी जो बेस डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको लेकर के इशूज था बिटवीन गवर्नमेंट एंड वेदांता ग्रुप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Tencent investing $63 million in Flipkart. So Chinese technology conglomerate Tencent is going to invest approximately $62.8 million into Walmart owned e-commerce company that is Flipkart। तो ये कह सकते हैं आप एक बहुत बड़ा मूव है, जबकि इंडिया में चाइनीज़ फर्म्स की एंट्री को बैन किया जा रहा है, चाइनीज़ कंपनीज़ की एंट्री को बैन किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी चाइनीज़ फर्म्स है दे आर सर्चिंग फॉर अनदर ऑप्शंस टू गेट एंटर इनटू इंडियन मार्केट, और जिसमें टेंसेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट। और ऐसा नहीं कि टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्लिपकार्ट पे है, अगर हम देखें तो डिफरेंट फॉर्म में इसमें थ्रू थर्ड पार्टी टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत सारी इंडियन कंपनीज में, जस्ट लाइक बाइजूस हो गए, हाइक हो गए, ओला हो गए, स्विगी, इन सब में भी इनडायरेक्टली टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कब करेंगे, रोकेंगे, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। So that's all for today, students. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.